Look, normally in waste pipes, 3 inches dia pipe is used. In soil pipe, 4 inches dia pipe is used. And to connect one manhole to the next manhole, um, 6 inches diameter is used. Right? Roll number 56. 56. G, roll number 56. What do you want to say? गलती से हो गया तो कोई क्वेश्चन भी पूछ लें गलती से. So, elaborating the answer for your question, roll number 86. For example, if I start in the washroom and I talk about the waste pipe or the floor pipe, so maybe I would start with 2 inches diameter waste pipe, which is starting from the wash basin. But the waste pipe, which is starting from the shower area, has to be 3 inches. And secondly, the waste pipe, which is connecting the floor trap or the washroom, it should be again 3 inches because uh, more water goes into the floor trap of the shower area and floor trap of the bathroom. Okay. In case of floor trap of the bathroom, when you wash the washroom, what happens? All of the water rushes to the floor trap, and in shower, more water is used, so a lot of water is also going into the floor trap of the shower. So both of these, uh, from both of these inlets, you should have provide at least 3 inches diameter pipe. But the pipe which is waste pipe which is coming from the wash basin, it can be 2 inches. But after their connection, the pipe should be at least 3 inches or 4 inches. Right? Normally we keep it equal to 3 inches. Right? तो हम करते क्या कि एक पाइप जो वो हमने वॉश बेसिन से 2 इंचेस का लाना है, उसको भी 3 इंचेस ही डाल देते हैं क्योंकि इट इट उससे फ़ायदा क्या होता है हमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हम हमारी मैनेजमेंट साइड की इजी हो जाती है. ठीक है. अगर एक डायमीटर पाइप आप 2 इंचेस एलिमिनेट कर दें और उसकी जगह भी 3 इंचेस ही डाल दें तो आपकी मैनेजमेंट थोड़ी इजी हो जाती है. जब आपने कनेक्शंस करने होते हैं तो वो 2 इंचेस वाले के लिए आपको एक अलहदा वो कनेक्शन लाना पड़ेगा. ठीक है. तो इसलिए हम सारे वेस्ट पाइप जो है वो 3 इंचेस के ही डाल देते हैं. दे आर सफिशेंट फॉर द वाटर फॉर सिंगल यूज़ वॉशरूम. सिंगल यूज़ का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारे वॉशरूम्स होते हैं, कमर्शियल वॉशरूम्स, कमर्शियल एरियाज़ में, वहाँ पे तो ज़्यादा वाटर की यूजेज है. तो उनके लिए ऑफ कोर्स हमें बिगर डायमीटर्स 4 इंचेस पे जाना पड़ता है और उन्हीं पाइप के लिए जो सारा पानी लेके जाते हैं. अदरवाइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए 3 इंचेस डायमीटर इज सफिशिएंट फॉर फ्लोर पाइप्स और द वेस्ट पाइप or 4 inches is sufficient for the soil pipe. Acha, 67 is asking, do you, 67 is asking about the manholes. Look, again, I'm telling you where do you have to provide a manhole? Manhole
is in simple terms we call it as a gutter. So, what is the or where should you provide a manhole? Basically, wherever you have to make a connection to the main sewer line, ठीक है, जहाँ पे भी आपने कोई पाइप बाहर डालना है आपने सुअर के अंदर, वहाँ वहाँ पे आपको कनेक्शन के लिए मैनहोल प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, in this main sewer line, the main sewer line cannot turn its direction by itself. तो जहाँ पे भी डायरेक्शन टर्न हो रही होगी वहाँ पे आपको मैनहोल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, when we talk about RCC pipes, nowadays RCC pipes are not used, but RCC pipes जब यूज होते थे तो उनकी लेंथ होती थी अराउंड 8 फीट के करीब। तो 8 8 का इंटरवल दो पाइप्स अगर हम मिला लें तो वो 16 फीट हो जाता है। तो 16 फीट से 24 फीट में आपको मैनहोल प्रोवाइड करना पड़ता था, ठीक है। आजकल ये यूपीवीसी पाइप्स आते हैं और इनकी लेंथ होती है अराउंड 10 फीट। तो हम दो लेंथ्स वुड टू लेंथ्स वुड बी इक्वल टू 20 फीट। तो हम आफ्टर एवरी 20 फीट या उसको 30 फीट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो 20 30 फीट में आपको एक मैनहोल प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है जी। So these are the rules of providing manhole. First of all, wherever you have to make a connection. Secondly, when the main sewer line is changing or the external sewer is changing its direction, you have to provide a manhole. And thirdly, after 20 to in 20 30 feet, you should provide a manhole. Acha, roll number 74 is asking. Rule number 74 is saying that the template I shared, in those templates, pipes are running inside the rooms. Can you provide them in open spaces which are inside the boundary wall? Maybe you have not seen it correctly. The pipes that I've shown in the sample drawing are not running inside the rooms. ठीक है जी। ये आपको कोई गलतफहमी हुई है 74। रूम्स के अंदर तो हमने पाइप्स रन ही नहीं करने, ठीक है। रूम्स के अंदर बिल्कुल नहीं करने हमने रन पाइप्स। देखें, वॉशरूम के अंदर रन होंगे, ठीक है। वॉशरूम से डायरेक्टली वो बाहर ओपन स्पेसेस में जाएंगे पाइप्स आपके। रूम के अंदर ना हमने प्लम्बिंग के पाइप्स रन करने, ना ही हमने सीवरेज के पाइप्स रन करने, ठीक है। 74, काइंडली मेक इट क्लियर कि रूम्स के अंदर हम पाइप रन नहीं करेंगे। अगर फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप दोबारा पूछ लें। रोल नंबर 86। एक मिनट। रोल नंबर 86 is asking, what about in gas and water supply system, like we use there 32 inches dia, 48 inches हमने नहीं यूज किया था, 50 inches यूज किया था। सॉरी 32 मिलीमीटर, और हमने 50 मिलीमीटर यूज किया था। 40 मिलीमीटर और 50 मिलीमीटर। एक बात, व्हाट अबाउट दैट स्पेसिफिकेशन? मुझे 86 आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। 86, if you can raise your hand. 86 आप क्या पूछ रहे हैं?
सर वो वाटर सप्लाई सिस्टम और गैस सप्लाई सिस्टम में हमने स्पेसिफिक पाइप्स यूज किए थे, तो वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो जरा काइंडली बता दें कि कहीं पे डिफरेंट पाइप था, कहीं पे डिफरेंट पाइप। अच्छा, अगर देखें आपको वो क्लियर हो गया है, सूरेज सिस्टम इज ए सेपरेट सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसमें पाइप्स भी और होंगे। अच्छा, प्लम्बिंग में क्या होता है? प्लम्बिंग में आपके जो पाइप्स यूज होते हैं, दे आर पीपीआरसी पाइप्स एंड गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स। PPRC pipes, the green color pipes that you normally see, wherever they have to be used, they should be embedded inside the wall elements, right? Secondly, अच्छा, मैं आपको बताता हूँ उसमें ये है कि जो आपको वाटर कनेक्शन दिया जाता है वो 40 mm का दिया जाता है, ठीक है। फिर आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक से आप वाटर पंप करके ओवरहेड वाटर टैंक में लेके जाते हैं। तो जब आप पंप करके लेके जाते हैं तो फिर आप अगेन 40 mm डाया या 40 mm इज इनफ, ठीक है। क्योंकि 50 mm डाया का पाइप लगाएंगे तो आपको पंप भी बड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। When from the overhead water tank water flows into your house, तो फिर आप उसका डायामीटर लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाएंगे। अ, मतलब अगर आप 50 mm का पाइप स्टार्ट कर रहे हैं वाटर टैंक से, तो फिर 40 पे रिड्यूस होगा, 40 के बाद 32 पे, 32 के बाद 25 पे, 25 के बाद 18 पे रिड्यूस होगा, ठीक है। और ये रिडक्शन आप किस तरह करते हैं? रिडक्शन जब भी आप कोई वाटर कनेक्शन देंगे किसी भी आउटलेट को, तो उसके बाद आप जब पाइप को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे उसी लेंथ में, तो आप उसका डायमीटर रिड्यूस कर देंगे, ठीक है जी। दिस इज द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग the plumbing pipes. Now, regarding the gas supply में पाइप का डायमीटर 25 mm होता है स्टैंडर्ड। 25 भी नहीं होता, 3 और 4 इंचेस होता है, ठीक है। 20 mm के करीब, राइट। अच्छा, रोल नंबर 67 इज आस्किंग, रोल नंबर 67 इज आस्किंग, ड्राइंग रूम में रन हो रहा है सुअर पाइप, यस। वो if you would see the recording, I have explained that thing there. Now half of the houses have a scenario that their one side is dead. So on the one side they have a patio. Patio is a place which is open to sky. So in that place there would be some rainwater, or you would wash the floor. So you have to collect the water in that area in a floor trap. Now from the floor trap, a straight pipe would run, and it would run along the shortest distance, ठीक है। जो भी आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वहां तक वो पाइप रन होगा, और स्ट्रेट डायरेक्शन में रन होगा, और वो टर्न नहीं होगा। और वो तो हमारी मजबूरी है, रोल नंबर 67, मतलब उसको पानी को हमने कहीं ना कहीं लेके जाना है, इसलिए वो रूम में से पास हुआ है। अदरवाइज अदरवाइज अगर आपके पास साइड पे पैसेज है तो आप उसी में रन करेंगे, आप रूम्स के अंदर से नहीं पाइप लेके जाएंगे, ठीक है। रोल नंबर 72 इज आस्किंग, roll number 72, you would observe this thing
that mostly wherever you have wherever you have washrooms in the ground floor, at the same locations, in most of the cases you have washrooms on the first floor. तो जो फर्स्ट फ्लोर के पाइप्स आएंगे वो नीचे आएंगे और नीचे से ग्राउंड फ्लोर के पाइप्स निकल रहे होंगे तो आप उन्हीं के साथ कनेक्शन कर देंगे उनका। ठीक है, आप सेपरेट भी ले जा सकते हैं टू द मैन होल, लेकिन जस्ट इन ऑर्डर टू सेव द पाइपलाइन आप क्या करते हैं कि उनका कनेक्शन कर देते हैं आपस में। ठीक है, व्हाट शुड यू नॉट कनेक्ट इज कि आपका जो रेन वाटर पाइप्स हैं उनको आपको कनेक्ट नहीं करना, रेन वाटर पाइप्स। ठीक है, जो भी रेन वाटर आपके टेरेसेस से या रूफ से ड्रेन पाइप्स आ रहे हैं उनको आपने वॉशरूम के पाइप्स के साथ कनेक्ट नहीं करना। 73 roll number is asking, can a gas pipe run in TV lounge? In TV lounge, you would, or in the living area, you would provide a fireplace in most of the cases. तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें certainly you would provide the gas pipe. The gas pipe would run in the wall. It would not run uh, in the floor. This should be kept in mind. Secondly, you would try कि आपकी जो fireplace है it should be closer to the exterior side wall ताकि आपका जो गैस पाइप है वो ज़्यादा अंदर तक ना आए। ठीक है, ऑफिशियली if you say तो अगर आप ऑफिशियली बात कर दें अकॉर्डिंग टू द रूल्स तो गैस पाइप कैन नॉट बी एम्बेडेड इनसाइड द वॉल। ठीक है, आपको गैस कंपनी जो है वो कहेगी कि आपको जो है ना ओपन वायरिंग करनी है। अगर आपको घर के अंदर भी पाइप चलाना है लिविंग रूम में या बेडरूम में तो द पाइप शुड बी ओपन। ओपन का मतलब वॉल से बाहर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग जो है वो उसको क्या करते हैं कि हम उसको एम्बेड कर देते हैं वॉल के अंदर। ठीक है, बट इट इज डेंजरस, राइट। मतलब जब आप गैस कनेक्शन भी लगवाते हैं सुई नॉर्दर्न गैस से तो वो आपसे अंडरटेकिंग लेते हैं कि आपकी जो वायरिंग है दैट इज ओपन वायरिंग। ठीक है जी, तो आपकी लास्ट असाइनमेंट है। और कोई क्वेश्चन आपका? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन। Yes, evaluation, there is a notification. Evaluation would be on campus. There is a notification from the university. If things do not change, तो आपको यूनिवर्सिटी आके सारी evaluation होगी। Is asking, are these the only basic requirements of a drawing? In any drawing project or in any, if you talk about a house project, ठीक है, तो ये जितनी हमने ड्राइंग्स की हैं या जितने मैंने आपको सैम्पल्स दिए हैं, दीज आर द बेसिक ड्राइंग्स विच आर रिक्वायरमेंट ऑफ अ हाउस प्रोजेक्ट। इसमें एक ड्राइंग नहीं दी मैंने आपको जो हमने ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम की भी नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइंग, तो वो भी होती है इसमें। और दीज आर all of these set of drawings comprise of a set of house construction drawing। ठीक है, तो उसमें यही होती है आर्किटेक्चरल प्लान्स, एलिवेशन सेक्शन, लेआउट या एक्सकवेशन, फिर फ्रेमिंग प्लान होता है, रीइंफोर्समेंट ड्राइंग्स होती हैं। रीइंफोर्समेंट की आपने नहीं बनाई बिकॉज इट इज़ नॉट योर स्टेज,
उसके बाद आपकी ये प्लम्बिंग, सीवरेज एंड इलेक्ट्रिफिकेशन होती है। Yes, roll number 74. All of these assignments have marks. Basically, ये जो आपका this is your project, term project, तो ये term project would carry major marks. बच्चे, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास इज ओवर। Stay safe, stay home, and you have to submit this assignment on 8th of August with the plumbing drawing and rest of the drawings. Plumbing drawing भी आपको आज कराने की जरूरत नहीं है सबमिट, वो आप 8th of August को ही कराएं। और when you would submit the AutoCAD file on 8th of August, तो उसमें आपकी तमाम ड्राइंग्स होनी चाहिए जो हमने अभी तक बनाई हैं AutoCAD पे। वो तमाम की तमाम ड्राइंग्स आपकी एक ही AutoCAD फाइल में होगी और वो आप 8th of August को सबमिट करवाएंगे, राइट? सब रीइंफोर्समेंट वाली भी उसी में होगी, ठीक है जी। Roll number 90 is asking a question. Okay, if you reduce the diameter at every connection और आपके 25 से 30 कनेक्शन आउटलेट्स हों तो फिर आप क्या करेंगे? बच्चे 25 से 30 तो आप एक पाइप से नहीं देंगे ना कनेक्शंस, तो उसमें पानी नहीं आएगा। तो उसमें आप क्या करेंगे? देखें, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट अ प्लम्बिंग पाइप, तो प्लम्बिंग पाइप अगर ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक से आता है और एक वॉशरूम में जाता है, तो एक वॉशरूम में आपके कितने आउटलेट्स हैं? आपकी एक वॉशरूम में शावर है, वन बेसन, सेकंड है, और थर्ड आपका जो आपके कमोड के साथ है या डब्ल्यूसी के साथ है। 3 आउटलेट्स पर वॉशरूम है। तो आप कर क्या सकते हैं? तो जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल, आप एक वॉशरूम में एक ही डायमीटर चलाएं, ठीक है जी, राइट? तो आप एक जो ओवरहेड वाटर टैंक से पाइप ला रहे हैं नीचे, उससे आप दो वॉशरूम्स को ही कनेक्शन देंगे या 3 को दे देंगे, तो वो 3 स्टेप्स में डाउन हो जाएगा। आपका डायमीटर 50 है तो 50 से आगे 40 हो जाएगा, 40 से आगे 32 हो जाएगा, 32 से आगे 25 हो जाएगा, ठीक है जी, राइट? रोल नंबर 90। तो जस्ट टू मेक थिंग सिंपल, आप एक वॉशरूम में एक ही डायमीटर चलाएं। चलें, दैट्स गुड। ओके जी, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। ठीक है जी, फिर एडवांस ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।